Okay. So students, up till now we studied about transcription in prokaryotes and transcription in eukaryotes, right? Yes, ma'am. Okay. First of all, in this chapter, we are talking about central dogma, which is the process of protein synthesis. Now, it has the first step, DNA replication. Second step, transcription of mRNA from one of the template strand of DNA, right? Yes, ma'am. Then that mRNA carries the genetic information from the DNA in the form of genetic code. And we know these genetic codes are in the form of triplet codons, the set of 3 nucleotides. Yes, ma'am. So here we can say that, for example, if the triplet codon is AUG, students, is it present on mRNA? So we will not use T here, we'll use uracil here, adenine, uracil, guanine, right? Yes, ma'am. तो जब डीएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है तो एमआरएनए पे ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दे आर कंटिन्यूअस without any comma, without any gap. We have to understand and consider it in the form of triplets, okay? Yes, ma'am. So the adjacent 3 nucleotides, that means nitrogen bases, forms one triplet codon, and each triplet codon stores the information for a selected amino acid. For example, if the triplet codon is AUG, then the amino acid is methionine. Now students, amino acids are written in abbreviations, that is in short forms, by either using 3 letters from their name, and mostly their initial letters. 3 initial letters from their name, or a single capital letter, the initial one. So methionine ka MET, the first 3 letters, or simply capital M, represents the amino acid methionine. तो अगर mRNA में जेनेटिक कोड दैट इज ट्रिपलेट कोडॉन AUG है, तो अमाइनो एसिड कौन सा वहां पे प्रोड्यूस होगा? By the process of translation, Methionine. okay. So here, today's lecture, first of all, will understand what is a genetic code, and then you will be able to understand the process of translation. सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन मीन्स mRNA is synthesized from the template strand of DNA. Then that mRNA is decoded. mRNA पे कोडॉन्स है जो डिकोड होते हैं into proteins by the process of translation, right? Yes, ma'am. But decoding the triplet codons to form the amino acids and to form the polypeptide chains of the proteins, you need to understand first about the genetic code. So सबसे पहले, who helped us to understand that the amino acids are coded by the triplet codons? So some of the scientists, जैसे कि हर गोविंद खुराना, ये हमने 10th में भी पढ़ा है, he could identify the sequence of triplet codons for the respective amino acid, right? Yes, ma'am. Yes. Second, Marshall also studied that we can produce proteins without using a cell. हमें क्या करना है? आर्टिफिशियली ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे कि सेल के अंदर AUG कोडॉन की वजह से मेथियोनिन अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होता है, तो मैं सेल के बाहर भी या आर्टिफिशियली नाइट्रोजन बेस का ट्रिपलेट बना सकती हूँ, एंड कैन आई आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इट देन? Yes, ma'am. Yes. So can we call it as cell-free protein synthesis, where we do not need a cell? We can do it artificially in the lab if we know the codon which codes the amino acid, right? Yes, ma'am. Yes. Next is Severo Ochoa. ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एंजाइम्स यूज करके ट्रिपलेट कोडॉन्स के थ्रू कैसे हम अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, एंड देन दोस अमीनो एसिड्स कैन बी formed into polypeptide chains to produce proteins. मतलब ये तीनों ने ये पॉसिबल करके दिखाया कि proteins can be synthesized by artificially forming mRNA without using the template strand of DNA, right?
Yes. Yes, ma'am. So is it written here? Because of these three scientists, it was possible that synthesis of RNA in template independent manner. Do we need a DNA template strand here? No, miss. No, miss. नो देखो हमने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ये mRNA प्रोड्यूस किया बाय अरेंजिंग द ट्रिपलेट कोडॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस. स्टूडेंट्स ये जो एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड गुआनाइन है ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं. जब हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन तैयार कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कोई भी और चीज तैयार कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन बेसिस क्यों नहीं? न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस, राइट? Yes, yes, ma'am. सो ये हम ऐसे कोड्स बनाते गए, उससे बना आर्टिफिशियल एमआरएनए. आर्टिफिशियल एमआरएनए से हमने सिंथेसाइज किए प्रोटीन्स. सो टेल मी अगेन, डिड वी नीड एनी सेल हियर और एनी डीएनए स्ट्रैंड ओवर हियर? No, ma'am. No, ma'am. Is it the very important discovery done by many of the scientists? Yes. Okay. Yes, ma'am. Then, is it correct that the order of the bases, that is nucleotide sequences, decides the amino acid? Which amino acid will be produced? Yes, ma'am. जैसे Yes. कि मैंने यहाँ Yes, पे एक ma'am. एग्जांपल दिया है, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ऑर्डर ए यू एंड जी है तो मेथियोनिन अमाइनो एसिड ही प्रोड्यूस होगा, थोड़ी ना वैलिन प्रोड्यूस होगा, राइट? Yes, ma'am. ओके. तो आज के लेक्चर में हमें ये चेकर बोर्ड स्टडी करना है विच कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक कोड फॉर द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. यहाँ पे अगर देखोगे मैंने SER, दैट इज अमाइनो एसिड सेरिन, HIS, दैट इज द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन. तो ये जो मैंने बताया अमाइनो एसिड्स आर एब्रिवेटेड इन देयर 3 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन सपोज अमाइनो एसिड टायरोसिन है तो जेनेटिक कोड क्या होगा, ना ट्रिपलेट कोडॉन क्या होगा? इजी है, बट ये सब समझने से पहले स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स विच आई विल एक्सप्लेन बाय शेयरिंग द फोटोज, क्योंकि बोर्ड इरेज किया तो वापस इसमें टाइम चला जाएगा. ओके Yes, ma'am. नंदना, मेक मी होस्ट फॉर 1 minute. I'll change the settings. Okay, so just a sec. So students, first of all, you need to understand this table. Means you need to remember there are 20 primary amino acids which all together binds in different proportions to produce different types of proteins. समझे? Yes, ma'am. So Yes, सबसे पहले ma'am. ये 20 amino acids with their abbreviations you have to learn. So the first amino acid is alanine, which is written in 3 letters as ALA and a single letter A. Second, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine and valine. तो ये है 20 अमाइनो एसिड्स, ये है उनके 3 लेटर एब्रिविएशंस एंड ये है इनका सिंगल लेटर एब्रिविएशन. अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये लर्न होना चाहिए सबसे पहले. आज का लेक्चर में ज्यादा नहीं लेने वाली हूँ, टीचिंग विल बी लेस बट फॉर यू लर्निंग वर्क विल बी देयर. जैसे ही लेक्चर एंड होगा इमीडिएटली यू गोइंग टू लर्न दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल 20 अमाइनो एसिड्स, उनका एब्रिविएशन लर्न करने की जरूरत नहीं, वैसे उनके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स ही है, सिर्फ 1-2 इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि आइसोल्यूसिन,
ILE. स्टूडेंट ये बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो HE दिख रहा था. ओके, सो इट्स ILE, मैंने चेंज करके दिया है. ओके, Yes, ma'am. सो ये अमीनो एसिड्स याद रखने हैं. देन स्टूडेंट्स यू टेल मी, ये जो अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल द सिंगल अमीनो एसिड, इज इट कोडेड बाय ट्रिपलेट कोडॉन? Yes, ma'am. जैसे कि मैंने अभी बताया, मेथियोनिन, ये जो अमीनो एसिड है, इसके लिए क्या कोड है, तभी ये सिंथेसाइज होगा. AUG. यस, अगस्त मंथ याद रखो, AUG. एंड स्टूडेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है. क्यों? एक जस्ट यू विल अंडरस्टैंड. सो सबसे पहला जो सी हियर, फॉर एग्जांपल, इसका इंपॉर्टेंस अभी बता देती हूँ. ओके, सपोज इट इज एन mRNA जिसके ऊपर ये है कोड्स. इज दिस ब्लू कलर विजिबल? स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग यू, इज दिस ब्लू कलर विजिबल? Yes, ma'am. अब स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन सेपरेट सेपरेट नहीं होते, दे आर जस्ट कंटिन्यूअस. बट समझने के लिए मैंने उसको ऐसे सेट ऑफ 3 में सेपरेटली अरेंज किया इन द सर्कल्स. ओके, Okay, ma'am. ओके. अब अगर ये जो mRNA के ऊपर 3 ट्रिपलेट कोडॉन्स है, मीन्स दे विल प्रोड्यूस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? सपोज X, Y एंड Z. वो X, Y, Z मतलब ग्लाइसिन है, सपोज ल्यूसिन है एंड मेथियोनिन है, राइट? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट्स, मेथियोनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ इनिशिएटर. मतलब ये जो अमाइनो एसिड्स है, विल दे बाइंड विथ ईच अदर विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म प्रोटीन, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड. Yes, ma'am. बट जहां पे मेथियोनिन होता है, वहां से ही पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, समझे? सो इज इट द इनिशिएटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. Yes, ma'am. ओके, ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, या सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट, सपोज अगर मैं ले लू आर्जिनिन, विच अमाइनो एसिड? Arginine. स्टूडेंट्स, आर्जिनिन ये जो अमाइनो एसिड है, ये 6 अलग अलग टाइप के ट्रिपलेट कोडॉन्स के थ्रू सिंथेसाइज हो सकता है. मतलब 6 अलग अलग टाइप के ट्रिपलेट कोडॉन्स विल ऑलवेज फॉर्म आर्जिनिन, बट मेथियोनिन इज कोडेड ओनली बाय 1 ट्रिपलेट कोडॉन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, जब हम वो चेकर बोर्ड पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो मेथियोनिन का कैरेक्टर क्या है, स्पेशलिटी क्या है? कि इट इज एनकोडेड बाय ओनली 1. हाँ, ये इनिशिएटर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. एंड सेकेंड थिंग, इट इज एनकोडेड बाय ओनली 1 ट्रिपलेट कोडॉन, राइट? Yes, ma'am. ओके, एक और है ट्रिप्टोफैन. कैन यू सी हियर? Yes, ma'am. सो Yes, ma'am. ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन, ये जो 2 अमीनो एसिड्स है, उनके लिए ओनली सिंगल ट्रिपलेट कोडॉन है. अलग अलग, हाँ, मीन्स दे आर एनकोडेड बाय सिंगल ट्रिपलेट कोडॉन. ओके, Yes, ma'am. बट इफ यू सी आर्जिनिन, 6 टाइप के ट्रिपलेट कोडॉन्स है, एवरी टाइम दे विल प्रोड्यूस आर्जिनिन ओनली. एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. So can you tell me who is the initiator amino acid for the formation of polypeptide? Methionine. Yes, and उसका ट्रिपलेट कोडॉन क्या है? AUG. Yes, मैंने अभी बोला अगस्त मंथ याद रखो, AUG. It's a trick Yes, to ma'am. remember it easily. Who is the initiator triplet codon or who is the initiator amino acid, right? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो एनी डाउट इन दिस टेबल? तो सबसे पहले आज ये अमीनो एसिड के नाम लर्न करने हैं एंड उनके एब्रिविएशंस. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट फोटो आई विल शेयर. 1 minute. Some important points. So students, we know that what is a genetic code? Is it a chemically specified language on mRNA?
Yes. Yes, which is actually derived from the DNA strand, right? Yes, ma'am. And it has the information in the form of triplet codons, right? Yes. Yes. Yes, Then ma'am. these triplet codons are decoded into proteins by the process of translation, correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now the next thing, arrangement of nucleotides bolo ya nitrogen base bolo, okay? Arrangement of nucleotides in the set of 3 is called triplet codon, and each triplet codon is responsible for one amino acid, right? Yes, ma'am. Yes, This ma'am. is very important. One triplet codon will synthesize one amino acid only, okay? Not 2 or 3 or more. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, student, just now we studied AUG is a initiating codon that begins the formation of polypeptide chain, right? Yes, ma'am. बट अब मुझे बताओ, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड बाइंड होते जाएंगे 10 12 20 25 अमाइनो एसिड, अगर 25 है नहीं सॉरी 7 8 9 10 अमाइनो एसिड बाइंड होते जा रहे, विल इट बी अ वेरी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन? शुड इट एंड समवेयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are stop codons, which are also called as nonsense codons. Why nonsense? See the 3 codons first of all, UAA, UAG and UGA. ये जो 3 ट्रिपलेट कोडॉन्स है, अगर ये mRNA है, यहाँ पे पहले जो भी है, लेकिन यहाँ पे आ गया नॉनसेंस कोडॉन, तो यहाँ पे ये जो नॉनसेंस कोडॉन है, ये कोई भी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं करता. So is it nonsense? No sense of amino acid. एंड यहाँ पे अमाइनो एसिड ही नहीं है, तो अब बाइंडिंग होगा क्या पहले लॉन्ग चेन के साथ? No. No, ma'am. So will the process of polypeptide chain formation will stop here? Yes. Yes. So that is why these are called as stop codons or nonsense codons. Understood everyone? Yes, ma'am. Then one more thing, if you see here, methionine and tryptophan. I told you they have only one triplet codon. Yes, ma'am. But leucine and arginine can be coded with the help of 6 types of triplet codons. Okay? Yes, ma'am. Okay. Students, यहाँ तक सबको सब समझा? Yes. Okay. Now one more last point on the screen, then we'll move on to the board. ये जो है टॉपिक, ये बाद में है, at the end, not now. So now, can you tell me, mRNA पे ये ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं जिससे अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन बनता है, करेक्ट? Yes. तो कैन यू टेल मी which 4 नाइट्रोजन bases or nucleotides forms the triplet codons of the mRNA? UAGC. Correct. Can you see it here on the screen? Yes, ma'am. Uracil, cytosine, adenine and guanine, right? Yes, ma'am. बट स्टूडेंट सिर्फ नाइट्रोजन बेस होता है कि न्यूक्लियोटाइड होता है? ये शुगर बेस एंड फॉस्फेट का मिक्सचर. Nucleotide. Yeah. So can you tell me the nucleotide name of uracil? Is it uridine? Yes, ma'am. Tell me for C, what you'll call the nucleotide having cytosine? Cytidine. 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 What is for A? Come on, इसका मतलब स्टार्टिंग का जो पढ़ाया है न्यूक्लियोसाइड्स, Adenosine. बेटा ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा ना, एडिनोसिन बोले तो. Adenylate acid. Adenylate acid. Yes. And G for? Guanylate acid. Yes.
तो स्टूडेंट्स यू नीड टू नो इनका न्यूक्लियोसाइड में इनको कैसे बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड में इनको क्या बोलते हैं, राइट? यस मैम। ओके, अब देखो मैंने अभी बताया कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं प्राइमरीली नीडेड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, टोटल 20, राइट? तो अगर हम चलो ट्रिपलेट कोडॉन ही क्यों यूज करते हैं वो अमाइनो एसिड्स को डिकोड करने में, व्हाई नॉट सिंगल कोड? जैसे कि सपोज आपने सिर्फ यू यूज किया, 1 मिनट, यू यूज ओनली यू, चलो यू गिव्स फॉर मेथियोनिन, सी कोड्स फॉर अर्जिनिन, ए कोड्स फॉर एलेनिन एंड सपोज जी कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, but will it give us only 4 amino acids then if you use the single code? Who is the host? कोई वेटिंग रूम में है क्या? देखो प्लीज, someone is calling me. नो मैम। ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई वाज आस्किंग यू, अगर हमने सिर्फ ट्रिपलेट कोडॉन, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ट्रिपलेट कोडॉन टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, हमने अगर सिंगल कोड यूज किया, बट विल इट गिव अस ओनली 4 अमीनो एसिड्स? बट हमें तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए चाहिए ना इंफॉर्मेशन, सो इज इट सफिशिएंट? नो। चलो अब हम डबल कोड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल कोड। सिंगल कोड सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन देगा, तो अब हम डबल कोड यूज करते हैं। सी द टेबल बिलो, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द सेकेंड पोजीशन, मतलब पहले लिखते वक्त ये लिखना है, फिर लिखते वक्त ये लिखना है। गॉट इट? यस मैम। हमने मेंडल का जैसे क्रॉस करते वक्त लिखते हैं, राइट? यस। ओके, तो अगर हमने डबल कोड लिए, ओके डबल कोड, फिर भी टोटल कितने बनते हैं? विल इट मेक 4 into 4, दैट इज 16 वर्ड्स ओनली? यस। बट अगेन विल इट कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स देन? नो। नो। इसलिए फिर हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ा? एक्चुअली हमें नहीं, बॉडी सिस्टम को, राइट? दैट इज व्हाई द ट्रिपलेट कोडॉन इज यूज्ड। अब ट्रिपलेट कोडॉन में हम क्या करेंगे? यहां पे भी ऐड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। सो यहाँ का होगा फर्स्ट पोजीशन, यहाँ का होगा सेकेंड पोजीशन और यहाँ का होगा थर्ड पोजीशन। बट ये जो चेकर बोर्ड है फॉर द ट्रिपलेट कोडॉन, आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। शुड वी स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। जस्ट अ सेक। स्टूडेंट्स अब तक का सब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। So which is the initiator triplet codon, which are the nonsense or stop triplet codon? वो concept समझ में आया? यस मैम। मैम। Okay. Okay, मीटिंग एंड होने में कितना टाइम है? 7 minutes. 7 minutes. Will you all rejoin first? यस मैम। हाँ, सब लोग rejoin करो, then we'll complete this table. Okay, is the board properly visible, students? यस मैम। Now, students, so we understood if we use only single code, it will give us information about 4 amino acids only. If you use doublet code, it will give us information about 16 amino acids only. 16. Yeah, that is why which is not sufficient to decode the 20 amino acids, right? The primary. Yes ma'am. Yes. That is why we need to use, means the body system uses the triplet codon system. So this is the triplet codon system that decodes number of amino acids, means the 20 amino acids. Now सबसे पहला how to make this table? Very simple. ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना है, पहले U फिर C फिर A and G. Same sequence in all the sides, right? Yes.
तो ये वाला जो सीक्वेंस है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, इज कॉल्ड फर्स्ट पोजीशन सीक्वेंस. द वन एट द टॉप इज कॉल्ड सेकंड पोजीशन सीक्वेंस, एंड वन एट द राइट. बट सी हियर, राइट में हमने सिर्फ सिंगल सिंगल लेटर एक बॉक्स के लिए यूज नहीं किया, हमने एक बॉक्स के लिए चारों बेसिस यूज किए हैं, UCAG, UCAG, UCAG and UCAG. Got it? Yes, ma'am. So this is called third position. मतलब पहले इसको लिखो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है पहले बॉक्स में जो आ रहा है. So will it be in the first place? U, 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 right? Yes, ma'am. Yes. Okay. What will be in the second place? UUC. Correct. U, U, C. Are you understanding? Yes, ma'am. In the third place, first, second, third. Are you understand? यहाँ पे हमें सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा. Means starting के दो सेम ही रहेंगे. Yes, ma'am. सिर्फ यहाँ से UCAG, UCAG. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अगले बोर्ड पे जाते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन U एंड द सेकंड पोजीशन वो बॉक्स के ऊपर जो है C, थर्ड में C. U, राइट? U. तो सबसे पहले काम करो, Yes. UC, UC, UC लिख के रखो 4 बार. एक मिनट, उसके सामने ही लिखती हूँ. सो UC, UC, UC एंड UC. सिर्फ यहाँ पे UCAG, UCAG, थर्ड पोजीशन. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Means in each box. समझ में आ रहा है कैसे कंप्लीट करते जाना है. Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट वाला निहिरा, यू विल टेल मी फटाफट. UAU. वेरी गुड. बोलो. UAC. करेक्ट. UAA गुड. and UAG. गुड. नेक्स्ट रिया, रिया वैराळे. UGU. गुड. UGC. करेक्ट. UGA. गुड. UGG. गुड. नेक्स्ट रिया रंगस्वामी. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. रिया, रिपीट. रिया. Sorry, ma'am. CUU, करेक्ट. CUU. हाँ. CUA. करेक्ट. नहीं, सॉरी, सेकेंड पोजीशन देखो यहाँ पे हाँ. C है बेटा, C. Sorry, ma'am. टेबल के सामने देखो. UC. हाँ. नेक्स्ट. UA. एंड द लास्ट UG. CUG. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट मृण्मयी. Yes, miss. CCU. गुड. CC. CCC. बोलते जाओ फटाफट. CCA. CCA. CCG. गुड. तो सबके समझ में आया ये चेकर बोर्ड कैसे कंप्लीट करना है? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब मैं फटाफट लिख Yes. रही हूँ बिकॉज आई वांट टू फिनिश वन मोर पार्ट इन इट. ओके? और एल्स Yes, ma'am. विल यू कंप्लीट इट ऑन योर ओन? Yes, ma'am. मैं नहीं कंप्लीट करूंगी, यू विल कंप्लीट इट. मैं फोटो भेज देती हूँ. ओके? बुक का भी और बोर्ड का भी. लेट्स सी. अब Yes, ma'am. आगे इसमें हमें क्या लर्न करना है. So students, the triplet codon triple U stands for the amino acid phenylalanine. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, the triplet codon UUC again stands for the amino acid phenylalanine. UUA for leucine, UUG for leucine. So there are some amino acids, they have more than one triplet codons for them, right? Yes, ma'am. Yes, बट इस पूरे टेबल में कहाँ पे है मेथियोनिन,
MET कहाँ पे है? या मैम चलो इसका कोड क्या होगा बताओ? AUG हाँ, AUG। देखो AUG किधर गया रे? हाँ सॉरी, G। समझ में आया? yes मैम So you will see this code AUG only at this place, nowhere else, and methionine also here, nowhere else, because it is coded by only one triplet codon, right? yes मैम One more I told you, tryptophan, right? yes मैम तो देखो ट्रिप्टोफैन भी और कहीं पे नहीं दिखेगा, ये टायरोसिन है, ये ट्रिप्टोफैन है, राइट? यू विल नॉट सी इट एनीवेयर. yes One more thing, at some places I have written stop. Can you see here? Stop. yes Starting में मैंने बताया UGA is a nonsense codon. It doesn't synthesize any amino acid. It stops the polypeptide chain formation, right? yes मैम तो टेबल में ये से देखो यहाँ पे भी stop UAG. There are three triplet codons ना. They act as a stop codons or nonsense codons. yes One more, where it is? Find out. मैम there on There only. Right? चलो मेरे से होशियार है मेरे बच्चे. गुड. समझ में आ रहा है? yes मैम तो अब ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है. एंड कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को डिकोड करता है, समझ में आया? yes मैम yes बट अब ये सब याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन इजी है, एक ही है उनके फैमिली मेंबर, एक ही जन है जो उनको डिकोड करता है. बट व्हाट अबाउट आर्जिनिन, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? जैसे कि फिनाइल एनिलिन को यू भी डिकोड करता है एंड यूयूसी भी डिकोड करता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट डोंट वरी. इसके लिए बहुत सारे न्यूमोनिक्स अवेलेबल है. इवन यू विल फाइंड ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट टू सी. बट वन ऑफ द माय फेवरेट वन इज देयर, बट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. बिकॉज पहले आपका ये टेबल कंप्लीट होना एंड वो 20 अमाइनो एसिड लर्न होना जरूरी है विद देयर एब्रिविएशन. ओके? ओके मैम क्योंकि स्टूडेंट्स जब मैं वो न्यूमोनिक्स पढ़ाऊंगी कि कैसे हमें याद रखना है कि कौन से कॉलम में आर देयर 4 कॉलम्स. yes तो ये चारों कॉलम में कौन से स्लॉट में कौन से अमीनो एसिड्स है, ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है. ओके? दैट इज न्यूमोनिक्स है. बट वो तभी समझेगा जब आपके सामने ये टेबल होगा. अब मैं फोटो शेयर करूंगी न्यूमोनिक्स का, उस पर से बताऊंगी. बट नेक्स्ट लेक्चर में जब आपके नोटबुक में ये टेबल होगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट न्यूमोनिक्स इजीली. ओके? ओके मैम yes तो आज का होमवर्क है ये जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड. इट इज कॉल्ड चेकर बोर्ड. You need to complete in your notebook along with few notes which I will send. Okay? yes मैम ठीक है. तो all will complete it now itself. Lecture मेरे लिए end हो गया है. Teaching part is end, but still the learning process will go on immediately now. समझ रहे हो? yes मैम वैसे भी खाना मम्मी को बनाना है, तुम्हें सिर्फ खाना है. थोड़ा आधा घंटा लेट खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहले ये वर्क कंप्लीट करना है. ओके एवरीवन? yes प्रॉमिस योरसेल्फ, जब तक आज मेरे 20 अमीनो एसिड लर्न नहीं हो जाते, मैं खुद अपने आप को खाना नहीं दूंगा. ये खुद को प्रॉमिस करो. इफ यू हैव अ हंगर फॉर द मार्क्स, रिमेन हंग्री फॉर सम टाइम. ओके? yes मैम